Dear all, in this video, I am talking about email writing. You will know email writing, how to write an email. First, you have to know about email. In the information age, email has become the dominant form of communication. Being able to write a polished professional email is now a critical skill both in college and the workplace. That means if anyone is working anywhere and if you are in college, at school, or you can say if you study, then when you have to write an email to anyone, then this is a critical. There are some keys distinction between formal and informal writing. Actually, next I will talk about formal email and informal email, as well as some guidance to follow when composing a formal email to a superior, that means professor, current or prospective employer. That means if anyone write an email to their boss. Otherwise, you can say to any staffs, to any uh, head of department, then someone who does not know you. Maybe when you write an email, then that particular person does not know you. No. Informal versus formal. Informal email written to friends and family. Second point is accuracy and grammar. That means spelling and punctuation are not important. Clear? But whatever sentence is there, meaning should be very clear. You can make up your own rules. That means you can use comma and short sentence also whenever you write to your friends and family member. This type of email is called informal email. Now I am talking about formal email. Written to a professor, colleague, boss, head of department. That means this type of email is used in official way. Must always be professional. Accurate grammar, punctuation, and spelling necessary, because whenever it is read by anyone, then it should be clear. Now, email format. First, you have to know about salutation. जब हम बात ईमेल फॉर्मेट की करते हैं, देन स्टार्टिंग करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि ईमेल फॉर्मेट में क्या क्या होता है. Salutation. The salutation of a formal email is similar to the salutation of a letter. When writing to someone you don't know by name, yes, you put to whom it may concern. When applying for a job, you would address the person by dear hiring manager, dear sir, dear madam, dear ma'am. If you don't know the recipient name, you put dear Mr. and Mistress. Smith is here. If you don't know, then dear sir, then madam. For a formal situation, you should not use the recipient first name or the formal greetings hello or hey. It is very clear. फॉर्मल में आप हेलो हे नहीं डालेंगे क्योंकि वो ऑफिशियल वे में हो जाता है. देन यू हैव टू पुट डियर सर, डियर मैम, डियर सर, मैडम. यू कैन राइट. नाउ बॉडी पैराग्राफ्स. जब आप ईमेल लिखते हो, उसमें जो कंटेंट डालते हो बॉडी में, कि इसमें जो मेन टॉपिक रहता है, उसमें आपको ध्यान रखने की बातें हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एन ईमेल नीड्स टू बी concise. The first sentence, known as the opening sentence, can be a greeting if the situation allows it. I hope all is well with you. आप जब राइट करते हैं तो बॉडी में आप अच्छे से अच्छे शब्दों को लिखिए, अच्छे से सेंटेंस को लिखिए, ताकि वो पॉजिटिवली लाए और उसके बाद अपनी बातों को रखिए. थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. ये जितने भी पॉइंट टू पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट हमारे इस काम की है कि हम बता सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं बॉडी में. However, for most formal email, it is the best to get straight to the point. Depending on the subject, you should have a maximum of 4 paragraphs, and each paragraph should contain a single point. It is also important to provide
questions. In order to prompt a response at the end of your last paragraph, you should provide a thank you or call to action depending on the subject of your email. Thank you for your assistance with. Thank you for your time. आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू। ये जितने सारे पॉइंट्स मैंने बोला, ये पॉइंट आप बॉडी में लास्ट में राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। आप जैसे इंड करते हो तो आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे करेंगे। फिल्स प्लीज फील फ्री टू कॉल और ईमेल मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। आप में उसमें मेंशन कर सकते हैं कि यदि आपको मेरी बातों से समझ में न आए तो जब आप राइट करते हो जनरली तो उसके बाद मोबाइल नंबर आता है या तो कोई कम्युनिकेशन वे जो सेम रिप्लाई करते हैं ईमेल का उसके थ्रू बोल सकते हैं कि आपको यदि कोई डाउट है बिल्कुल यू कैन रिप्लाई, ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ दिस कुड बी टेकन केयर ऑफ प्रॉम्प्टली। इस तरह का भी सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। तो जितने पॉइंट मैंने बताया ये पॉइंट आपको बॉडी में जो आपको मेन चीज है वो करनी है, स्टार्टिंग करनी है और फिर बॉडी में लास्ट में इस तरह के सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं जिससे कि अफेक्टिव ईमेल होगा। नाउ क्लोजिंग, जब आप ईमेल को लास्ट में क्लोज करते हो देन कैसे करेंगे? लाइक द सैल्यूटेशन द क्लोजिंग ऑफ अ फॉर्मल ईमेल कैन बी द सेम एज द क्लोजिंग टू अ लेटर। However, unlike the salutation, there are more options for closing. Thank you, best regards, sincerely। इस तरह से जैसे आप लेटर में करते थे लास्ट में कि थैंक यू बोलते थे, बेस्ट रिगार्ड बोलते थे, सिंसियर, कोई एक ही करना है, सभी नहीं करना है। क्लियर? उस तरह से आप क्लोजिंग करेंगे थैंक यू करके, योर रिगार्ड्स में भी कर सकते हैं या सिंसियर या योर सिंसियरली ऐसा भी कर सकते हैं, योर्स भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद आप लास्ट में क्या करेंगे, अपना फुल नेम डालेंगे और फुल नेम के ऊपर में आप साइन भी कर सकते हैं। ऑफिशियल ऐसा होता है। और यदि आप स्कूल कॉलेज में राइट करते हैं तो साइन की सिर्फ जरूरत काफी है, आप अपना नाम यदि फुल नेम डाल देते हो कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑफिशियल में क्या होता है, फर्स्ट यू हैव टू राइट फुल नेम, देन आप उसके ऊपर में क्या कीजिए, इससे ऊपर वाले लाइन में क्या कीजिए, एक सिग्नेचर डाल सकते हैं। नाउ हियर आर सम टिप्स। डोंट यूज कंटेक्शन, फॉर एग्जांपल डोंट, हैवंट, आई एम, इज नॉट, इजंट, इस तरह का यूज ना करें। डोंट राइट इन ऑल कैपिटल लेटर, पूरे के पूरे जो है ना ईमेल को कैपिटल लेटर में मत लिखिए। यूज फॉर्मल वोकैबुलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। डोंट यूज स्लैंग, स्लैंग लैंग्वेज आपको यूज नहीं करना है, प्रोफेशनल में आना है और अच्छी अच्छी बातें ही राइट करना है, ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है जो कि हम किसी को बोल नहीं सकते हैं। रीड द ईमेल एटलीस्ट ट्वाइस, आप कभी भी ईमेल आप राइट करते हो तो राइट करने के बाद उसे अपने से एक बार पढ़ लीजिए और किसी का आता भी है तो रिप्लाई करने से भी पहले आप पढ़िए। यानी इफ यू वांट टू रिप्लाई टू एनीवन, किसी का ईमेल का रिप्लाई करना चाहते हैं, देन भी यू हैव टू रीड ट्वाइस सो दैट यू कैन आंसर वेरी वेल। यदि आप राइट कर रहे हो और सेंड करने वाले हो देन जरूर आप अपने ईमेल को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपकी जो बातें वो सही है कि नहीं आप क्लियर हो जाएंगे। नाउ हियर आर, यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन दिया, ये जो पिक आपको दिया ये वो पिक है जो कि ईमेल में एक्चुअल में होता है, ठीक है। बट जब राइट करोगे तो उसके आगे मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा। जो जनरली कॉपी में जब राइट करते हो तो इतने सारे राइट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैंने जो फॉर्मेट दिया आपको, जब स्क्रीन पर आओगे इसी तरह का पोर्शन मिलेगा आपको, फ्रॉम ऑलरेडी रहेगा और ये आपका ईमेल से जैसी किसी को सेंड करोगे, सेंड में जाओगे, मेल करना चाहोगे तो आपका फ्रॉम में ऑलरेडी आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, abcd@yahoo.com, gmail.com जो भी है। नाउ सेकंड इज यू हैव टू पुट, आपको यहाँ पर देना है टू में रिसिपिएंट ईमेल आईडी। आप abcd XYZ को भेजना है xyz@gmail.com। नाउ CC, ये क्या बताता है, अदर इंडिविजुअल रिसीविंग द सेम मेल विथ विजिबल आईडी। ये क्या करता है, आपको विजिबल आईडी CC जब आप उसको करेंगे और किन्हीं का यदि ईमेल आईडी डालते हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि ये ईमेल किन किन के पास गया है। ये उनको सबको पता चल जाता है कि दूसरे को, कि इसमें कार्बन कॉपी में डालने पर सबको पता चलता है कि ये ईमेल किन किन के पास गया है। BCC क्या होता है, अदर इंडिविजुअल रिसीविंग द सेम मेल विद द इनविजिबल, उनको दूसरे का पता नहीं चलता लेकिन ये सेम ईमेल जो है उनके पास भी चला जाता है, यानी एक से ज्यादा आदमी को एक साथ भेज सकते हैं। नौ, सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट आपको करना है, सब्जेक्ट आपको देना भी है। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट जो आप राइट करना चाहते हो, जो भी देना चाहते हो टॉपिक, अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपको देना है। सैल्यूटेशन, ये आपका फिर बॉडी में आ जाती है, वहीं से स्टार्ट करना है, सैल्यूटेशन से ये स्टार्ट करना है। ये आपका पॉइंट राइट करने शुरू हो गया, यानी सब्जेक्ट तक आपका कॉलम बना हुआ रहता है, उसके बाद आपका सैल्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगी। रिस्पेक्टेड सर, डियर मैम, इस तरह से फॉर्मल इनफॉर्मल को ध्यान में रखना है। देन मेन बॉडी, मेन बॉडी में आपको इंट्रोडक्शन कैसे आप है नहीं है वो कीजिए। फिर जो बातें आपकी है मैटर इन डिटेल, जो बात आप बताना चाहते हैं यू हैव टू राइट डाउन क्लियरली। देन कंक्लूजन, आप
इस तरह से क्लोज कीजिए धीरे धीरे और बताइए कि ठीक है हम आपका वेट कर रहे हैं या जो भी करना चाहते हैं, इस तरह से कंक्लूजन डालिए या उनको जो आप बता रहे हैं बात उनकी कंक्लूजन डालिए। नो देन यू हैव टू क्लोज योर पॉइंट। आपकी जितने भी पॉइंट आपने दे दिए उसके बाद क्लोज करना है, तो एंडिंग स्टेटमेंट देना है कि आपका वेट करेंगे या फिर मिलेंगे या जब हम ऐसे मिलेंगे तो बात डिस्कस करेंगे। इस तरह से आप क्लोज कीजिए। नाउ अटैचमेंट मैंने क्यों दिया, यदि आप कोई फाइल और भी है, पिक्चर है या कोई वर्ड फाइल है, पीडीएफ है, तो आप अटैचमेंट में जाकर उस फाइल को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपका मेल मेन बॉडी में से पढ़ा जाएगा, रीड किया जाएगा और अटैचमेंट जब डाउनलोड किया जाएगा रिसिपिएंट से तो वो और भी ज्यादा डिटेल जान सकता है। नाउ जब आप राइट करते हो मेल तो उसी पोर्शन में आपका आता है सेंडर्स नेम सिग्नेचर। ये आपका सिग्नेचर पोर्शन होता है जो कि आप लास्ट में कंटिन्यूसली सैल्यूटेशन मेन बॉडी उसके बाद लिखने के बाद वहां पर क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग के बाद ही नीचे थैंक यू रिगार्ड्स ऐसे करके आप या तो योर सिंसियरली अपना नेम सिग्नेचर और अदर कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया जाता है। आपके पास नहीं है तो नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना नेम सिग्नेचर, यदि सिग्नेचर वहां नहीं भी कर सकते तो भी चलेगा, यानी अपना नेम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं। नो आई एम टॉकिंग अबाउट, अब नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात कर रहा हूँ कि जब आप एग्जाम में कॉपी में करते हैं तो मोस्टली क्या चीज को देखा जाता है, फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल। फर्स्ट यू हैव टू मेंशन डेट, जिस डेट में आप एग्जाम दे रहे हो। देन फ्रॉम, फ्रॉम दैट मीन्स यू आर राइटिंग अ लेटर, आप राइटिंग कर रहे हो और एन ईमेल जो राइट कर रहे हो, मेल राइट कर रहे हो। देन आपका पहले ईमेल आईडी जाएगा, आप जो भी हो abcd@, abcd123 abcd जो भी आप देना चाहते हो @gmail.com बिल्कुल देना है और सर स्मॉल में लिखना है और कहीं भी स्पेस नहीं देना है। ये आपको याद रखना है कि जब भी ईमेल आईडी आप राइट करते हो तो कहीं भी स्पेस नहीं देना है, कंटिन्यूसली राइट करना है। देन टू दैट मीन्स रिसिपिएंट का, आपके जो जिनको भेज रहे हो उनका क्या ईमेल आईडी है, उनका भी कंटिन्यूली राइट करना है, कहीं स्पेस नहीं देना है। देन यू हैव टू गो थ्रू द सब्जेक्ट, आपको कौन सी पॉइंट पर बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट मेंशन कीजिए। देन डियर जो भी आप राइट करना चाहते हैं। देन आप पूरा बॉडी जो मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था, मेन पॉइंट बताया था, कंक्लूजन बताया था, ये आप पॉइंट कीजिए। देन थैंक यू या थैंक्स आप राइट कीजिए। देन योर सिंसियरली या सिंसियरली, योर फेथफुली राइट कीजिए। देन यू हैव टू राइट योर नेम। इस तरह से हम पूरे ईमेल को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से राइट कर सकते हैं और एग्जाम में भी आपको फुल मार्क्स मिल सकता है, यानी आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे क्योंकि आपका डेट, फ्रॉम और टू ये मेंशन है, सब्जेक्ट है तो आपका उसका मार्क्स मिलता है। देन बॉडी पोर्शन पे आपको मार्क्स मिलता है। बॉडी में याद रखें आपको ऐसा ना कि बहुत ही कम सेंटेंस में आप उसे क्लोज करें, कम से कम 3 से 4 पैरा जरूर राइट करें। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, देन मेन पॉइंट पर जाना है, देन कंक्लूजन जाना है, देन आपको सैल्यूटेशन दे करके वो क्लोजिंग करके आपको साइन, आपका नाम नेम देना जरूरी है। देन ये आपका कंप्लीट ईमेल जो है तैयार हो जाएगा और आपको मार्क्स गेन करने में बहुत ही मजा आएगा और ज्यादा मार्क्स भी मिलेगा। थैंक यू सो